ایک ایسی سرزمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے لیے زمین پر نہیں بلکہ سجدوں میں چلتے تھے۔ اور پھر ایک رات آئی جب ایک خواب نے اس بادشاہ کی نیند چھین لی۔ جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک تھا۔ نیل کے کنارے آباد شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھی، بازار بھرے ہوئے تھے، محل پتھروں کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص تھا، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ اور زور لگاؤ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھکے ہارے گر پڑتے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، Bloody civilians. کیونکہ کمزور قوم کبھی تخت نہیں الٹ سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومیوں اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کو دربار میں بلایا گیا۔ خواب سنایا گیا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا خوف غرور میں بدلنے لگا۔ فرعون نے سوچا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں بلکہ قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑ گئی، ہزاروں معصوم جان سے گئے، اور اسی ظلم کے دور میں پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی والدہ ہر لمحہ خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ سیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا، اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ آخر وہ صندوق فرعون کے محل کے کنارے جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا گیا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑی، اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈال دی۔ انہوں نے فوراً کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا۔ یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے۔ محل میں پریشانی پھیل گئی۔ تب وہ بہن آگے آئی اور کہنے لگی، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اس محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ جوان ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے۔ وہاں دو مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل اور دوسرا مصری۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठ ना सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो कत्ल हो गया है। अल्लाह ने इन्हें माफ फरमाया, लेकिन मिस्र ने इन्हें माफ नहीं किया। शहर में आग लग गई। फिरऔन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल लिया ना सामान, बस अल्लाह पर यकीन लेकर आगे निकल पड़े। अल्लाह फरमाता है कि वो खौफ और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं था जहां मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और जरा फासले पर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रही? इन्होंने जवाब दिया, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानवरों को पानी पिलाया, फिर एक दरख्त के साए में बैठकर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। कुछ देर बाद एक लड़की इनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपना पूरा वाक़या सुनाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा बन चुका था और अल्लाह यही से अपने नबी की तैयारी फरमाता है। जब मुद्दत पूरी हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ मिस्र के लिए रवाना हुए। रात का वक्त, शदीद सर्दी के अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ पर रोशनी देखी। इन्होंने अपनी अहलिया से फरमाया, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के करीब आए तो आवाज आई, ए मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप उठा। मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तू मुकद्दस वादी तुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरऔन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है, तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें खास ताकत रखी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ रब, मेरी जबान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। हजरत मूसा अपने भाई हजरत हारून के साथ सलाम के साथ फिरऔन के महल में गए। फिरऔन, तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरऔन गुस्से में बोला, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया गया। इन्होंने रस्सी फेंकी और लोगों को सांप नजर आने लगे। लोगों के दिल कांप गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी लाठी उठाई और इसे जमीन पर रखा तो वो हकीकी अजदहा बन गई। उस अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। फिरऔन गुस्से में बोला, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है कि वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करने लगा। अल्लाह ने फिरऔन और इसकी कौम के लिए अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान आया। ये सिर्फ पानी की बुलंदी नहीं थी, बल्कि पानी का नाफिज होने वाला अजाब था जो इनकी फसलों को तबाह कर गया। जमीन डूब गई और इनकी रोजी रोटी का सहारा खत्म हो गया। जब तूफान खत्म हुआ तो फिर एक और निशानी आई, अजाब का एक और सिलसिला जिसने जमीन की हर हरी चीज को खा लिया। फिर एक और अजाब जिसमें कीड़े लोगों के जिस्म से चिपक गए और हर चीज को तकलीफ देने लगे। फिर एक और निशानी आई जब हर कोने से मेंढक निकलने लगे। ये कोई आम मौसमी तब्दीली नहीं थी, बल्कि बगैर आवाज के एक अजाब था, 5वां अजाब।
और मिस्र का पानी सुर्ख हो गया, मछलियां मर गई और पानी मैल से भी भरा हुआ था। फिर भी फिरौन कहता रहा, ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फिरौन पर भेजी गई निशानियां बयान की हैं। इनमें सिर्फ अजाब नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी शामिल हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। जब सुबह हुई तो फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो चुके। इन्हें हम वापस पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे कि हम ही ताकतवर हैं। कौम बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर की तरफ रवाना हो गई। जब समंदर के किनारे पहुंचे तो इनके सामने एक गहरा समंदर नजर आ रहा था। बनी इसराइल के लोग कहने लगे, हम फंस गए। ये खौफनाक पानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है और पीछे मौत का लश्कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी से पानी को मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी लाठी को पानी पर मारा। पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दो दीवारें उठ गई और दरमियान में खुश्क रास्ता, और बनी इसराइल का ईमान और मजबूत हो गया। इन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया। फिरऔन और इसकी फौज ने रास्ता देखा, फिर भी इसने कहा, ये हम भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दीवारें पानी के दरमियान अपने घोड़ों और फौज के साथ गबूर करने लगा। गरूर इतना था कि हक बताने वाली निशानियां सामने होने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समंदर के दरमियान से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि पानी दोबारा मिलाकर समंदर को बंद कर दो। यूं पानी जैसे घर की छत से गिरने लगा। लहरों ने फिरऔन और इसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब इसका आखिरी लम्हा आया, फिरऔन की नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल ने माना। लेकिन इस वक्त इसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि ये सबके लिए इबरत बने। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जो फिरऔन की बीवी थी, कुरान में जिक्र की गई हैं। आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाया और अपने घर में सब्र और इबादत के जरिए खुद को महफूज रखा। अल्लाह ने इनके लिए जन्नत तैयार की। ये वाक़या दिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गरूर भी सिर्फ एक लम्हे में अल्लाह की ताकत के सामने बेबस हो जाता है।